Okay, Assalamu alaikum, my dear students. Today we'll start the new article that is about borax. Starting from the previous one, the physical properties. Following are the important physical properties. Number one, borax is a white crystalline solid. Number two, it is sparingly soluble in cold water, but it is more soluble in hot water. याद रखिएगा, कोल्ड वाटर में इसकी solubility कम है, hot water में ज़्यादा है. At 10 degree Celsius, only 3 gram of decahydrated borax becomes soluble in 100 gram of water. 100 ग्राम वाटर में जो 10 डिग्री सेल्सियस पे हो सिर्फ 3 ग्राम बोरेक्स डेकाहाइड्रेटेड सॉल्युबल होता है. But 99.3 grams of the substance becomes soluble in 100 grams of water at 100 degree Celsius. लेकिन अगर वाटर जो है 100 ग्राम वाटर जो है अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो तो फिर 99.3 ग्राम जो है वो डेकाहाइड्रेटेड उसमें soluble हो जाता है. नंबर 3, अबाउट 62 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 62 डिग्री से ज़्यादा हो, octahedral crystals of pentahydrate borax are obtained. octahedral crystal ऐसी क्रिस्टल जिनकी शेप octahedral हो और वो pentahydrated borax हो, 5 वाटर मॉलिक्यूल वाला, 5 वाटर मॉलिक्यूल वाला जो है pentahydrated borax are obtained from saturated solution. सैचुरेटेड सोल्यूशन हो हमारा, टेम्परेचर 62 डिग्री से अबव हो, ऑक्टाहाइड्रेट क्रिस्टल बनेंगी. किसकी बनेंगी? पेंटाहाइड्रेट बोरेक्स की. If the temperature is below 62 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 62 डिग्री से कम हो, then the decahydrated crystals are obtained. फिर क्रिस्टल जो है वो decahydrated क्रिस्टल बनेंगी. Chemical properties. Number 1, reaction with water. When borax is dissolved in water, it ionizes as follows. Borax पानी में डिसॉल्व किया, it gives sodium ion and borate ions. Borate ions undergo hydrolysis. It releases orthoboric acid or simple boric acid and hydroxyl ions. Borate ions plus 7H2O, it gives orthoboric acid and hydroxyl ions. Sodium ion and hydroxyl ion do not make a bond with each other. Sodium ion and hydroxyl ion do not make a bond with each other. Due to free hydroxyl ions, solution strongly alkaline. ये क्योंकि OH आयन फ्री होते हैं तो ये सोल्यूशन जो होता है वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा. जितने ज़्यादा OH आयन होंगे किसी सोल्यूशन में उतना सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होगा. ऑर्थोबोरिक एसिड is a weak acid. It ionizes to give a very few ions of hydrogen ion, very few hydrogen ion. It dissociates to a small extent. So the net result is that the aqueous solution of borax is alkaline in nature. It turns red litmus to blue. तो alkaline होगा, red litmus को blue करेगा. Question arises, small question जो है, short question, why the solutions of boric acid is alkaline? ये जो सारा जो है लाइनें हैं ये इसको इंडिकेट करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि सोल्यूशन जो बोरेक्स का
जो है वो अल्कलाइन की ओर। पहली बात तो ये है कि OH आयन और सोडियम आयन जो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। दूसरी बात जो है OH आयन सोल्यूशन में फ्री नेचर होते हैं और ऑर्थोबोरिक एसिड जो वीक एसिड होता है, वीक एसिड होने की वजह से आयोनाइजेशन कम होती है, हाइड्रोजन वैसे कम होते हैं और जो है इसी वजह से सोल्यूशन जो होगा बोरेक्स का वो अल्कलाइन नेचर होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। दूसरी बात ये है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोकें कि हाइड्रोक्स बोरेक्स जो हाइड्रोलाइज ना हो। इसका आंसर है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि the hydrolysis is prevented in the presence of glycerin। इस सोल्यूशन में थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दें तो ये जो है हाइड्रोलिसिस जो है उसकी रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। बोरेक्स इज अ सोडियम साल्ट ऑफ पायरोबोरिक एसिड। पायरोबोरिक एसिड का ये सोडियम साल्ट है, दैट इज H2B4O7. When this salt is reacted with strong acid like HCl and sulfuric acid in the presence of water, then orthoboric acid is produced. The reactions are as follows. Borax, when treated with sulfuric acid in the presence of HCl, in the presence of water, it gives sodium chloride and orthoboric acid H3BO3. Borax Na2B4O7, when treated with sulfuric acid with 5 water molecules, it gives sodium sulfate and orthoboric acid. Next property, reaction with ammonium chloride. When borax is heated with ammonium chloride, then boron nitride is produced. Borax plus ammonium chloride, it gives sodium chloride plus boron nitride plus boron oxide plus water. Effect of heat. Heat का क्या इफेक्ट होता है? When borax is heated, it swells up, फूल जाता है, swelling हो जाती है. A white porous mass is produced due to the एक्सपेल्शन ऑफ वाटर निकल जाता है और बोरेक्स की स्वेलिंग अप हो जाती है। व्हेन इट इज फर्दर हीटेड और हीट करें, इट मेल्ट्स इनटू अ क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये मेल्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में। दिस ग्लासी सब्सटेंस कैन डिसॉल्व मैनी मेटालिक ऑक्साइड विद विच फॉर्म्स द कलर्ड बीड्स। Very important part, colored beads, बोरेक्स बीड टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आता है इम्तहान में। बोरेक्स बीड टेस्ट हमने आगे लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोरेक्स plus 10 water molecule, it gives sodium borate plus 2NaBO2 प्लस B2O3। ये सारा का सारा जो है इट इज कॉल्ड ग्लासी मैस। दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट। ये जो है ये बोरेक्स बीड टेस्ट का की बेस है। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं? जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो जब थर्ड ग्रुप के मेटल जो हैं जब उनको आयनाइज कराते हैं, उनको प्रेजेंट कराते हैं तो उनमें जो है बोरान जो है बोरेक्स बीड टेस्ट देता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर थर्ड ग्रुप का कोई सॉल्ट दिया हुआ आपको तो फिर आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? दिस टेस्ट इज for colored basic radical like copper ion, ferric ion, manganese ion, cobalt ion, chromium ion और निकल आयन। इन सब आयन्स की ये सारे कलर्ड आयन्स हैं, इनकी प्रेजेंस को जो है इन रेडिकल की प्रेजेंस को या टेस्ट करने के लिए बोरेक्स बीड टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर क्या है? फर्ज करें आपने एक सबसे पहले क्या लेनी है,
प्लाटिनम वायर लेनी है। प्लाटिनम वायर जो है लेबॉर्ट्री प्रोवाइड नहीं करती, हर स्टूडेंट के पास अपनी होनी चाहिए। 15 से 20 रुपए की जो है 25 रुपए की आ जाएगी, ये जो है सबके पास अपनी होनी चाहिए। क्या होती है, पीछे गिलास राड लगी होती, आगे एक बारीक सी प्लाटिनम वायर है। आपने उस प्लाटिनम वायर को जो है उसको जो है राउंड करना है। पेंसिल का सिक्का जो होता है या दूसरी पेंसिल लेड पेंसिल की बजाय अगर आप पास जो है दूसरी राइटिंग वाली पेंसिल्स हैं उसके ऊपर लपेट के और जो उसकी लूप बना दें। जब लूप बन जाए, दिस टेस्ट इज फॉर कलर्ड बेसिक रेडिकल्स, ये बता दिया मैंने आपको। कहते हैं जी प्रिपेयर अ लूप एट द एंड ऑफ अ प्लैटिनम वायर। प्लैटिनम वायर के एंड पे जो एक जो वायर है उसकी एक लूप बना दें। हीट द वायर, फिर उस वायर को हीट करें एंड टेक अ लिटिल पाउडर्ड बोरेक्स ऑन द हॉट लूप। जब ये लूप हॉट हो जाए, इसको जो आपके पास बोरेक्स पड़ा हुआ है उसको जो है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है लगाएं, ये उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। पाउडर्ड बोरेक्स ऑन द हॉट लूप, हीट अगेन, दोबारा गर्म करें। बोरेक्स फर्स्ट स्वेल्स अप, बोरेक्स पहले स्वेल्स अप होगा एंड देन मेल्ट हो जाएगा एंड कलरलेस ग्लास लाइक बीड ऑन द लूप, और लूप के ऊपर एक कलरलेस ग्लास लाइक बीड बन जाएगा। फिर हम क्या करें, जो आपको साल्ट मिला हुआ है, जो कलर्ड साल्ट है, चाहे वो कापर का है, मैंगनीज का है, निकल का है, क्रोमियम का है, कोबाल्ट का, किसी का भी साल्ट है, उसके थोड़ी सी चुटकी भरें और उसके ऊपर जो है छिड़क दें। जब छिड़क देंगे, now put a few grains of the substance under examination, the beads and reheat it, दोबारा हीट करें in the oxidizing flame and then on the reducing flame। पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे करें, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम पे करें। क्या होगा, केमिस्ट्री क्या है इसकी, केमिस्ट्री ऑफ द बोरेक्स हीट टेस्ट। बोरेक्स वन फ्यूज्ड यानी मेल्ट किया आपने, is decomposed into sodium metaborate, this is the sodium metaborate NaBO2 and boric anhydride B2O3, it is boric anhydride। The metallic oxide formed from the substance under examination combines with the B2O3, इससे रिएक्ट करता है, giving the colored metallic borate with cupric oxide। कापर का साल्ट होगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, आयरन का होगा फेरिक ऑक्साइड, मैंगनीज का होगा मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम का होगा क्रोमियम ऑक्साइड, सो एंड सो फोर्थ। द कलर ब्लू इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कापर का साल्ट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर का बीड बनेगा बिकॉज क्यूप्रिक बोरेट आर ब्लू इन कलर। देखिए कापर ऑक्साइड प्लस बोरिक एनहाइड्राइड, it is converted into CuBuO2 whole twice, cupric borate that is blue in color। ये बीड जो बनेगा ब्लू कलर का बनेगा। यहाँ जितने भी कलर कंपाउंड होंगे उनके जो बीड बनेंगे वो मुख्तलिफ कंपाउंड के मुख्तलिफ कलर होंगे। यूजेस ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के यूजेस क्या हैं। नंबर 1, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास। बोरेट ग्लास हाई रेजिस्टेंट हीट ग्लास होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो लेबॉरेटरी वेयर जो बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ पायरिक्स वाले या बोरेक्स ग्लास जो है ये इस्तेमाल होते हैं लेबॉरेटरी वेयर्स में। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास विच इज़ हीट रेजिस्टेंट, ये है हीट रेजिस्टेंट होते हैं। नंबर 2, इट इज़ यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर सॉफ्टनिंग में इस्तेमाल करते हैं बोरेक्स को। हॉट वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस ये भी है कि उसको आप जो है बोरेक्स के साथ ट्रीट करवा दें तो उसकी हार्डनेस जो होती है वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है। हार्ड आयन जो होते हैं हैवी वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी को निकाल कर अलग कर लेते हैं। नंबर 3, इट इज़ एम्प्लॉयड इन बोरेक्स बीट टेस्ट, हमने कर लिया, फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटालिक कैटाइंस। ये सारे कैटाइन थे, कॉपर आयन
फेरिक आयन, मैंगनीज आयन, कोबाल्ट आयन, क्रोमियम आयन एंड निकल आयन, ये सारे जो है कैटाइंस हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड इन मेटलर्जी। वेल्डिंग एंड मेटलर्जी में एज अ फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? देखिए, अ सब्सटेंस यूज्ड या एडेड टू अ मेटल टू मेक इट ईजियर टू सोल्डर। सोल्डर बना लेते हैं, सोल्डर या टेम्परेचर कम कर देते हैं ताकि वो जल्दी से जो है किस चीज़ को जो है वो सोल्ड कर दे, उसे टांका लगा दे, उसे जो है आप कहते हैं कि हमने सोल्डरिंग करानी है। अब देखें, सोल्डरिंग करानी है तार वार को तो हल्की सी गर्म करके उसको लगा देता है, वो जॉइंट हो जाती है, जुड़ जाती है, सोल्डरिंग हो जाती है। तो मेक इट ईजियर टू सोल्डर टू अनदर मेटल, तो सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स जो होता है ऐसे सोल्डरिंग इस्तेमाल होता है। इट इज़ एम्प्लॉयड इन मेकिंग, वॉशिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग एंड डाइंग। टैनिंग इंडस्ट्री जो है, टैनरी जो है, लेदर इंडस्ट्री को टैनरी कहते हैं। ये कसूर का सारा इलाका जो है ये टैनरी, बेहतरीन किस्म की टैनरी यहाँ पे मौजूद है। कुछ चीचा वतनी में भी वहाँ भी टैनरी है। डाई में भी इस्तेमाल करते हैं, उनको कलर करने में, डाई करने में। इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, सोप में इस्तेमाल करते हैं, टेक्सटाइल में इस्तेमाल करते हैं, पेट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं, मैच इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, एंड एज ए प्रिजर्वेटर। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ देर के लिए चीज़ें ताकि ख़राब ना हो, प्रिजर्व रहें, उनकी जो है उनकी जो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, तो एज ए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो आपसे हम हमेशा गुजारिश करते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमें जो है वो हमसे रब्ता करें। लेक्चर जो है इसको आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो चैनल है उसको जो है आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।